Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, welcome to the course of Fundamentals of Public Administration, and the course code is MPA 406. Okay, before we move on to our today's topic of discussion, let us have a brief reflection that what we have discussed in our previous lecture. Okay, in our previous lecture we talked about different functions of government. We talked about National Assembly, we talked about provincial assemblies, we talked about the Senate, and then we also talked about the judiciary as well. So in our previous lecture we talked about the recruitment and selection process in different organizations, like for example we talked about federal and provincial governments. There we talked about the role of Federal Public Service Commission and Provincial Service Commission regarding recruitment and selection process. Then we talked about the autonomous bodies. Now the difference between the Public Service Commission and autonomous bodies when we talk about recruitment and selection process is they have a big difference. Like for example, all the hirings in the provincial and federal territories are in the public sector. When we talk about the pure government sector, is made by the Federal Public Service Commission or the Provincial Service Commission. Whereas in the case of autonomous bodies, like we talked about universities, or we have talked about some other organizations in the public sector which are the autonomous bodies. Now those autonomous bodies, they conduct their own tests and interviews, and they have their own recruitment and selection process. So they have the authority to directly hire employees for different positions. Then we talked about like for example job analysis. So before a job is advertised, this is really very important in the public sector of Pakistan to do that human resource planning. Now what do we mean by human resource planning when we talk about the public sector of Pakistan? Okay, human resource planning means that like for example in different organizations, in different departments, there is resource requirement. Like for example here we are talking particularly about the human resource. Now in every organizations there are different human resource requirements. Now in order to forecast, in order to identify, in order to predict that how many persons are required to do a particular kind of task. So this is the job of a human resource planner in public sector of Pakistan. Now one major function of human resource planning is to do that job analysis. Now what do we mean by job analysis? Like for example आपने manager administration hire करना है, तो manager administration को hire करने से पहले आपने उसका job analysis करना है कि जो similar job है manager administration की, इस तरह की jobs market में किन किन इदारों में है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या उसकी मेजर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं जो उसने परफॉर्म करनी है, थिंग्स लाइक दैट. तो मार्केट का एक तरह से आप सर्वे करते हैं एंड यू कंडक्ट दैट जॉब एनालिसिस, यू कंपेयर like your job descriptions with the job description of the other organizations, and after that comparison you come up to a certain conclusion, and those are called the best standards or the benchmarks available in the market. And then of course after doing that job analysis, job description and job specification की जाती है कि जो job applicants हैं उनके पास competency होनी चाहिए. Like for example we call it job eligibility criteria, कि उनकी qualification क्या हो, उनका experience क्या हो, उनकी कोई special skills क्या हो, तो वो eligibility criteria में आ जाएंगी. और then job responsibilities की हम बात करते हैं कि जो job applicants हैं उन्होंने क्या perform करना है, उन्होंने क्या responsibilities perform करनी है, क्या activities perform करनी है, तो वो उनकी job responsibilities में आ जाएंगी.
सो जो एक गुड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस है, वहाँ पे जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको मैच किया जाता है जो जॉब एप्लीकेंट की कॉम्पिटेंसी और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ, और जहाँ पे बेस्ट मैच आपको अवेलेबल होता है, देन यू हायर दैट पर्सन. ओके, so these were the things we talked about in our previous lecture. And here I would like to add one more thing here, and that is really very important. So the difference between the poor nations and rich nations is only one, and that is of attitude. So what do we mean by attitude and behavior? अक्सर ये टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, एटीट्यूड की हम बात करते हैं, हम बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? नाउ जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं, मीनिंग दैट द वे यू थिंक, योर परसेप्शन, योर फीलिंग्स, योर मोटिवेशन, योर विलिंगनेस पार्ट, योर इंटरेस्ट पार्ट, कि किसी काम को करने में आपकी कितनी मोटिवेशन है, आपका कितना इंटरेस्ट है, आप कितने ज़्यादा कमिटेड हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है उस काम के साथ, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी परसेप्शन क्या है, आपकी सोच क्या है उस काम के बारे में, उस काम को करने के बारे में, उस काम के बारे में आपकी सोच क्या है, क्या वो सोच पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड में आ जाती हैं. और यहाँ पे हम कहेंगे कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर है, एंड नीयत इज योर एटीट्यूड. नाउ टॉकिंग अबाउट बिहेवियर, नाउ बिहेवियर इज meaning that your action part, like for example your facial expressions, your body language, the way you sit or stand, your dress and things like that. So जो आप words जो हैं deliver कर रहे हैं, written हैं या oral words हैं, आपकी जो body language है, आपके जो चेहरे के expressions हैं, आपका जो dress है, तो ये एक message communicate कर रहा है. So that is your action part. So your action part is called your behavior. Now behavior कहाँ से develop हो रहा है? Behavior is coming from your attitude. तो attitude of course is the source, और attitude के अंदर से आपका behavior आ रहा है. तो शुरू में जैसे मैंने बात की कि what is the major difference between rich nations and poor nations in the world? There is only one difference, and the difference is attitude and behavior. So we can become a superpower, we can like improve our economy, we can improve different systems in Pakistan, and that is only possible with the help of right positive attitude and right positive behavior. Okay. Now we move on to our today's topic of discussion, and that is Public Service Commission की जब हम बात करते हैं, the Public Service Commission Article 242 gives provision of a body which is the recruiting agency for the federal and provincial governments. So here we talk about Parliament in relation to the affairs of federation, and the provincial assembly of a province in relation to the affairs of a province. So here you see that the Parliament is dealing with the affairs of the federation, whereas the provincial assembly is dealing with the affairs of the province. And then may by law provide for the establishment of a public service commission. Now here we conclude our previous lecture and today's lecture that the Constitution provides the framework for the government. Now this is really very important when we talk about the 1973 Constitution of Pakistan. So जब हम Constitution की बात करते हैं तो Constitution जो है वो एक गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. नंबर वन, उसको सर्टन पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है, उसको सर्टन बाउंड्रीज प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, कि एक सिस्टम की बात करता है, एक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन it gives provision of the bodies that will make policies for the government. Again ये एक provision provide करता है उन bodies के लिए जो कि government के लिए different policies को develop करेंगी. And then in fact if we look at all the provisions studied, we will find that it gives the structure for the three branches of government, that is executive, legislative and जुडिशरी. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट प्रोविजंस की, और हम देखते हैं कि देर आर द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और जिनके नाम है एग्जेक्टिव है, आपका लेजिस्लेटिव है एंड जुडिशरी है. सो इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर बॉडीज लाइक NEC एंड NFC
So both of which are important bodies for making decisions of national significance, जिनको हम अपने पिछले लेक्चर में इन दोनों बॉडीज को हम डिस्कस कर चुके हैं. Now, talking about the structure of the government of Pakistan, the cabinet is headed by the prime minister, who is the executive head of the government. तो जब हम government के executive head की बात करते हैं, जब हम cabinet की बात करते हैं, तो cabinet जो है, like for example, पाकिस्तान में जो वुज़रा हैं, जो ministers हैं, like for example, कि पाकिस्तान government जो है मुख्तलिफ जो कैबिनेट में जिन लोगों को लिया जाता है, वी कॉल देम मिनिस्टर्स. तो जो मिनिस्टर्स हैं उनको मिला के एक कंपोजिशन जब हम कैबिनेट की कहते हैं, तो कैबिनेट की जो कंपोजिशन है उसके अंदर आपके मिनिस्टर्स हैं, और मिनिस्टर्स जो हैं उनको हेड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर. और प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट. देन इट हैज बीन स्टेटेड दैट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट and the prime minister helps him in decision making. So again you see the role of the president of Pakistan. Though जब हम बात करते हैं head of the state की, तो we are talking about the president of Pakistan. और जब हम बात कर रहे हैं head of government की, तो we are talking about the prime minister of Pakistan. This is really very important to differentiate. यहाँ थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की और जब हम बात कर रहे हैं स्टेट की, ना एक चीज़ आप देखिएगा कि गवर्नमेंट जो है वो 5 साल के लिए पाकिस्तान में गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है, और जब गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है, जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस हैं, उनकी मुख्तलिफ जो जमातें हैं, वो इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू जब एक इलेक्ट होके जो पार्टी अक्सरियत में आती है, वो पार्टी 5 साल के लिए जब इलेक्ट होके आती है, तो उसका जो हेड है जो कि उस गवर्नमेंट को जिसने रन करना है, दैट इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. वेयर एज जब हम स्टेट के हेड की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. सो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में. सो इट मीन्स दैट कि प्रेसिडेंट को जो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो गाइडलाइंस हैं, जो डिसीजंस के अंदर जो मेजर जो हेल्प आउट करता है, वो के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कर रहा है. So it is the prime minister who is responsible for running of government. जब हम गवर्नमेंट को रन करने की बात करते हैं, गवर्नमेंट के जो पब्लिक अफेयर्स हैं उसको रन करने की बात करते हैं, पाकिस्तान के अवाम की बात करते हैं, पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी जब हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली जब हम वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, तो देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द शोल्डर ऑफ द Prime Minister of Pakistan. Now we continue our discussion on the structure of government of Pakistan. Here the constitution comprises the national, provincial assemblies and the Senate. So जब हम देखते हैं कि constitution comprise करता है national assembly, provincial assemblies, और जब provincial assemblies में चारों assemblies पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उसकी हम बात करते हैं, and the Senate की हम बात करते हैं. And then that is the constitution gives the structure, formation, functioning and methods of national, provincial and the Senate. Now this is really very important कि जब हम national assembly की बात कर रहे हैं, provincial assembly की बात कर रहे हैं, और चाहे हम सेनेट की बात करें, तो इन तीनों इदारों के लिए जो स्ट्रक्चर है, लाइक फॉर एग्जांपल कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा. स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं कि वहाँ कितने लोग काम करेंगे उन इदारों में, और कितनी उनकी कंपोजिशन कैसी होगी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होगी, हायरार्की क्या होगी, किस तरह से वो वर्किंग करेंगे, उनको फॉर्म कैसे किया जाएगा. जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं कि किस तरह से इन इदारों को फॉर्म किया जाएगा, उनकी फंक्शनिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सेनेट, कि सेनेट का एक स्ट्रक्चर है, सेनेट की फॉर्मेशन किस तरह होगी, सेनेट की फंक्शनिंग क्या होगी, कि डिफरेंट जो फंक्शंस हैं सेनेट उसको कैसे परफॉर्म करेगी, और जो उसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होंगे. सो उन मेथड्स को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तमाम की तमाम गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, or we are talking about the provincial assemblies of Pakistan, or we are talking about the Senate of Pakistan. So it means that जो basic guidelines हैं वो Constitution of Pakistan जो है वो यहाँ पे दे रहा है. And then Constitution provides broad framework of government, कि गवर्नमेंट का एक जो broader framework है कि overall गवर्नमेंट किस तरीके से रन करेगी, Constitution आपको हेल्प आउट कर रहा है. And then
operational level functioning are regulated by the specific acts which have to be placed before the legislature and approved. तो जो अब जब हम ऑपरेशनल लेवल की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए डिफरेंट अप्रूवल्स चाहिए और वो लेजिस्लेचर के सामने उसको पेश किया जाता है और उसको वहां से अप्रूवल ली जाती है एंड देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. Now, when we talk about the organization chart of government, so as mentioned earlier that the president is the head of the state and the prime minister heads the cabinet and the cabinet comprises ministers. जैसे हमने पहले बात की थी कि head of the state जो है वो president of पाकिस्तान है और head of the government जो है वो prime minister of पाकिस्तान है and prime minister is also heading the cabinet and that comprises of different ministers. Now the number of ministers keeps varying. So ये गवर्नमेंट जो है ये किसी भी गवर्नमेंट आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मिनिस्टर्स उनको चाहिए. सो नीड बेस्ड जो एरियाज हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी उनकी प्लानिंग्स हैं उसके मुताबिक ये तादाद जो है वेरी करती है मिनिस्टर्स की जो कि कैबिनेट के अंदर होते हैं. देन सम टाइम इट इज 29, सम टाइम 16 एंड सम टाइम 39. सो दीज मिनिस्टर्स हेड द मिनिस्ट्रीज. तो डिफरेंट वेरी करता है, कभी आपके 39 मिनिस्टर्स होते हैं, कभी 16 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं. सो अगेन देयर इज कोई उसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने ही मिनिस्टर्स आपके कैबिनेट में होंगे. सो अगेन आई विल रिपीट दैट कि कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर्स होंगे जो मिनिस्टर्स की तादाद जो है वो हर गवर्नमेंट के साथ वेरी करती है, हर नई गवर्नमेंट के साथ वेरी करती है. एंड अगेन आई विल से दैट कि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉन्टीजेंसी अप्रोच है जिसको हम कहते हैं सिचुएशनल अप्रोच कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो मिनिस्टर्स की तादाद है कैबिनेट के अंदर दैट वेरीज फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड दैट वेरीज फ्रॉम जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं पाकिस्तान में उसके मुताबिक वो वेरी करती है. Now we talk about the rules of business. Now जब हम rules of business की बात करते हैं तो the question that can arise is how ministries work. Now this is really very important. We have talked about in our previous slide that there are different ministries और ministries को जो head कर रहे हैं they are called the ministers. और ministers जो हैं they form a cabinet और cabinet को head करता है prime minister. Now prime minister helps the president of Pakistan in making decisions. तो पहले हमने बात की. Now the thing is, a very important thing is कि जो different ministries हैं ये काम कैसे करती हैं. So the constitution of the country under article 90-99 states the formulation of rules of business. So यहाँ पे जो rules हैं ऑफ बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90-99 यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. एंड देन दिस मीन्स दैट द रूल्स हैव टू बी फ्रेम फॉर द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड डिवीजन्स. सो बिजनेस मीन ऑल वर्क डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट मीन्स ऑल द मिनिस्ट्रीज, डिवीजन्स एंड अटैच्ड डिपार्टमेंट्स एंड ऑटोनमस बॉडीज एक्सेट्रा. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि रूल्स ऑफ बिजनेस को डिफाइन करने की जरूरत है और वो तमाम रूल्स ऑफ बिजनेस क्या होंगे, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए क्या होंगे और उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा. Now we continue our discussions on the rules of business. So rules of business explain the responsibilities of the secretary who heads the division. तो जितने भी divisions हैं उन divisions को एक secretary जो है वो उसको head करता है. And then just as there are rules of business for the federal government, there are rules of business for the provincial governments. तो जब हम बात करते हैं पंजाब की, जब हम बात करते हैं सिंध की, जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की और जब हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, तो ये जो चारों प्रोविंसेस हैं और जब हम बात करते हैं कश्मीर की, जब हम बात करते हैं अपने पूरे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जितने प्रोविंसेस हैं तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो सो देयर आर रूल्स ऑफ बिजनेस. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अपने रूल्स ऑफ बिजनेस हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट के अपने रूल्स ऑफ बिजनेस हैं. सो इट मींस दैट रूल्स ऑफ बिजनेस से मुराद ये है कि किस तरह से रन किया जाएगा, कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से रन करेगी अपने इदारों को और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो अपने इदारों को कैसे रन करेगी. और ऑफ कोर्स प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है एंड डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मुख्तलिफ रूल्स जो हैं रूल्स ऑफ बिजनेस उनको डिफाइन किया जाता है, उनको डेफिनेटली उनको अप्रूवल के बाद उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है. Now
हमने मिनिस्ट्रीज की बात की, हमने मिनिस्टर्स की बात की, हमने ये बात की कि वी हैव ए कैबिनेट, कैबिनेट को हेड प्राइम मिनिस्टर कर रहा है और कैबिनेट के अंदर मुख्तलिफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब हम मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें से कुछ मेजर जो मिनिस्ट्रीज हैं जो कि तकरीबन तमाम गवर्नमेंट्स के अंदर जो सिमिलर मिनिस्ट्रीज हैं, अगर मैं इस तरीके से कहूँगा तो वो मिनिस्ट्रीज अगर हम देखें कि नंबर 1 इज द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, then we talk about the Ministry of Commerce, then Ministry of Culture, Sports and Youth Affairs, then we talk about Ministry of Communication, then Ministry of Defense and Production, then Ministry of Finance and Revenue, then we talk about Ministry of Information and Technology, and then of course Ministry of Interior, and then finally Ministry of Housing and Works. So जब हम बात करते हैं Cabinet Secretariat की, so is the Secretariat of the Cabinet which maintain all its paperwork. So ministries cited above are cited. So as you see that there is a list of ministries. So जिन ministries की हमने बात की, these are the indicative of the kind of work that government do. तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ministries का अगर आप नाम देख लें, like for example कि जो Ministry of Commerce है, जो commerce related activities हैं, उन तमाम की जो responsibility है that is on the shoulders of the Ministry of Commerce. इसी तरह जब हम culture की बात करते हैं, sports की बात करते हैं, youth affairs की बात करते हैं, so we are proud of the youth of Pakistan. तो जब हम youth की बात करते हैं, sports की बात करते हैं, culture की बात करते हैं, अपने traditions की, norms की, values की बात करते हैं, तो we have a Ministry of Culture, Sports and Youth Affairs जो कि इन तमाम मैटर्स को देख रही है कि यूथ जो हैं उनको किस तरह के प्रोग्राम्स चाहिए, यूथ को क्या एक्टिविटीज़ चाहिए, यूथ के क्या इश्यूज़ हैं, यूथ के क्या चैलेंजेस हैं, यूथ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, यूथ को किस तरह उनको ग्रो किया जाए, किस तरह उनको डेवलप किया जाए। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स है, कल्चर है। सो ये चीज़ें देखें कि तीनों जो कल्चर, स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स को एक मिनिस्ट्री जो है वो एक इंटीग्रेटेड तरीके से आगे लेके चलती है। देन वी टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड प्रोडक्शन, अगेन डिफेंस जो हमारी बॉर्डर सिचुएशन है और जो इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर के हालात और पाकिस्तान के जो बाउंड्रीज पे हालात हैं उसको डेफिनेटली जो है टेक केयर करने के लिए उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के शोल्डर्स पे है। एंड देन वी टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू। जैसे कि नाम से जाहिर है कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और जो रेवेन्यू मैटर्स हैं कि टैक्स कलेक्शन कितनी हो रही है, नंबर 1 थिंग इज कि आइडेंटिफाई करना कि जो पॉसिबल जो टैक्स पेयर्स कौन कौन से हैं पाकिस्तान में, उनसे इंश्योर करना उनसे टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, और वो जो रेवेन्यू कलेक्शन करके सो डेफिनेटली ये तमाम मैटर्स जो हैं वो फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री और जो रेवेन्यू मिनिस्ट्री है वो दे डील विद इट। सो द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैटर्स रेलिवेंट टू फाइनेंस एंड रेवेन्यू are on the shoulders of Ministry of Finance and Revenue. Then we have Ministry of Information and Technology. So this is really very important. Of course, कोई भी दुनिया का मुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर ग्रो नहीं कर सकता. This is a fact. This is a universal fact. So when we talk about the information technology in the world, or when we talk about the information technology role in the public and private sector of Pakistan, the ministry that comes in our mind is the Ministry of Information and Technology. So पाकिस्तान के अंदर जो हम देखते हैं कि एक चेंज की ज़रूरत है। जब हम चेंज की बात करते हैं तो डेफिनेटली 3 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें पाकिस्तानियों को चेंज की बहुत आई स्ट्रांगली रेकमेंड की जिसमें ज़रूरत है। पहली जो हमने इस लेक्चर के शुरू में बात की कि एटीट्यूड एंड बिहेवियर। सो पीपल ऑफ पाकिस्तान दे मस्ट फोकस ऑन देयर द वे दे थिंक एंड दे मस्ट फोकस ऑन द वे दे एक्ट। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर है, नीयत इज योर एटीट्यूड। तो नीयत और जो एटीट्यूड है और जो बिहेवियर है, जो एक्शन पार्ट है, इन दोनों को हाईली पॉजिटिव होने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 जब हम बात करते हैं चेंज की, पॉजिटिव चेंज की, तो वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी कि वाई नॉट कि पाकिस्तानीज yes okay कि we adopt new technology and we of course we adopt new ways of working on machines and we adopt new machines and we learn that, but at the same time उसके साथ साथ क्या जरूरत है कि we need to focus on creativity and innovation.
सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए जो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, तो जहाँ पे जब हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के रोल की बात करें तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर मिनिस्ट्री का एक स्पेसिफिक एरिया है, तो अगर आप देखें कि हर मिनिस्ट्री एक स्पेसिफिक एरिया में काम कर रही है, सो व्हाट दीज मिनिस्ट्रीज आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट इन पाकिस्तान एज ए होल। तो एक हमने बात की कि एटीट्यूड एंड बिहेवियर को पॉजिटिव करने की जरूरत है, मजीद पॉजिटिव करने की जरूरत है, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। देन न्यू टेक्नोलॉजी को क्रिएट और इनोवेट करने की जरूरत है और उसके साथ साथ डेफिनेटली उसके अंदर डेवलपमेंट्स की जरूरत है। एंड देन फाइनली वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो मुख्तलिफ मेथड्स ऑफ वर्किंग हैं, जो मुख्तलिफ सिस्टम्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम अप्लाई हम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड बिहेवियर, technology and structure. So in these three areas we need to improve our of course performance, और जब हम इन तीन areas को focus करके आगे बढ़ते हैं तो definitely I think it's everybody would agree with me that nobody can stop us from moving forward, and of course Pakistanis can do wonders. And then talking about the interior ministry, of course पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि नाम से जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, कि पाकिस्तान के अंदर पीस को इंश्योर करना, पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी को इंश्योर करना, पाकिस्तान के अंदर कुछ इस किस्म की चीज़ें जो पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उनको मैनेज करना। सो इस तरह की जो रेलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम की तमाम जो हैं, इट इज़ ऑन द शोल्डर्स ऑफ द Ministry of Interior. And finally we talked about Ministry of Housing and Works. So this is really very important कि एक जो बहुत बड़ा एक जो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा जो इशू है और जो बहुत बड़ा चैलेंज है, ऑफ कोर्स दैट इज़ के अपना घर, एंड दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स जो हैं वो उसका बहुत रोल है कि पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ उसके अंदर हेल्प आउट करना, ताकि वो उस तरफ उस डायरेक्शन में आगे मूव कर सकें। Okay, now we talk about the structure of our ministry. Now, our ministry is division or group of division. Now, then the division is entrusted with one task. For example, Ministry of Finance has divisions like, अब हम यहाँ पे एक example दे रहे हैं Ministry of Finance की, कि Ministry of Finance के मुख्तलिफ divisions कौन कौन से हैं? And these are the 4 divisions: Finance Division, Economic Affairs Division, Statistics Division, and Revenue Division. Now here we talk about the main functions of the Economic Affairs Division. Now, the main functions of the Economic Affairs Division are as follows, as you see in the slide. Negotiations with the foreign governments and organizations pertaining to economic assistance and requirements. So now you see that Economic Affairs Division जो है, which is one of the divisions of Ministry of Finance, उसकी जो major responsibility अगर आप देखें कि foreign governments के साथ, foreign organizations के साथ उन तमाम issues पे, matters पे correspondence करना, उनके साथ उसको नेगोशिएट करना जिनका ताल्लुक हमारी इकोनॉमिक असिस्टेंस और रिक्वायरमेंट्स के साथ है। सो ऑफ कोर्स दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस इज लाइक ए बैकबोन टू एनी कंट्री। सो सेम इज ट्रू इन पाकिस्तान, कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो बैकबोन इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वर्किंग जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी बेहतर निगोसिएशंस होंगी, जितनी बेहतर उनकी इनपुट आउटपुट होगी, डेफिनेटली उतना ही पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द next responsibility on the shoulder of Economic Affairs Division in Pakistan is matters relating to technical assistance to or from foreign countries. So सिर्फ ये नहीं है कि foreign countries से हमने assistance लेनी है, technical assistance लेनी है, बल्कि साथ साथ जिन foreign countries को हमारे assistance की जरूरत है, technical assistance की, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी assistance, technical assistance देने के लिए भी तैयार है through the Economic Affairs Division. And then we talk about the review and appraisal of international and regional economic trends and its impact on national economy. Again एक review and appraisal का part बड़ा important है, जो कि Economic Affairs Division का एक बहुत major responsibility मैं ये कहूँगा कि review और appraisal करती है international और regional economic trends की, कि पूरी दुनिया के अंदर, region के अंदर और मुल्क के अंदर
इस वक्त क्या इकोनॉमिक ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरफ को जो है वो इकोनॉमी जा रही है, क्या वो इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है या डिक्लाइन की तरफ जा रही है, रिसेशन की तरफ जा रही है। तो तमाम ट्रेंड्स को रिव्यू करना, उसको अप्रेज करना, दैट इज one of the major responsibilities, one of the major functions of the economic affairs division. And of course उसका एक impact देखना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो पूरी दुनिया के अंदर एक चेंजिंग ट्रेंड्स हैं इस वक्त, कि जब हम देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर एक चेंजिंग ट्रेंड्स इस वक्त हैं, जब हम बात करते हैं अपने रीजन की, हम बात करते हैं, हम दुनिया की बात करते हैं, इस ग्लोबल विलेज, तो उसके इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, तो उसको रिव्यू करना और अप्रेज करना एंड ऑफ कोर्स एक करेक्टिव मेजर्स लेना, उसकी रेलेवेंट रिकमेंडेशंस देना, दैट इज द मेजर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, व्हिच इज वन ऑफ द डिवीजन्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. Now we talk about the autonomous bodies under Ministry of Finance. तो जब हम autonomous bodies की बात करते हैं, so these are the autonomous bodies as you see in the slide. Monopoly Control Authority है, then we have the nationalized commercial banks हैं, then Pakistan Security Printing Corporation है. So these are the autonomous bodies of Ministry of Finance. So autonomous bodies are not administratively controlled by the ministry. So यहाँ पे थोड़ा सा आप ज़हन में रखिएगा अपने कि जो autonomous bodies हैं उनको directly जो है वो administratively control नहीं किया जाता ministry से. That is why we call them autonomous bodies. तो autonomous bodies they can make their own decisions. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि ऑटोनमस बॉडीज में जब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और द प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ कोर्स जो हायरिंग्स हैं प्रोविंस में और फेडरल में उसके थ्रू होती हैं, लेकिन जब हम ऑटोनमस बॉडीज की बात करते हैं तो वो खुद से हायरिंग करते हैं और खुद से इंटरव्यू टेस्ट कंडक्ट करते हैं. तो इट मीन्स दैट शोज देयर इंडिपेंडेंस. तो ऑटोनमस बॉडीज जो हैं वो दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री. सो दीज बॉडीज हैव देयर ओन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब हम बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं, बीओडी की बात करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं तो व्हाट फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड? Okay, when we talk about the role of board of governors, the first thing that comes in the mind is the stakeholders and the shareholders. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स कौन से हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि उसके शेयर होल्डर्स कौन से हैं. नाउ जब हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ऑल द एम्प्लॉयज एंड ऑल द कस्टमर्स और जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो इर्द गिर्द की कम्युनिटी है या जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ है या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ है, सो वो तमाम लोग, वो तमाम इदारे, दे बिकम दी स्टेक होल्डर्स, जिसका कोई ना कोई एक जो है ताल्लुक, कोई ना कोई इम्पैक्ट बनता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ. दे आर द स्टेक होल्डर्स. ऑन दी अदर साइड जब हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स वो लोग हैं या एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका उस इदारे के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है और उन्होंने शेयर्स परचेज किए हुए हैं. तो जब हम बात करते हैं सपोर्टिव एनवायरनमेंट की, जब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ फैसिलिटीज की, जब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, जब हम बात करते हैं रिवॉर्ड्स की, तो एक जो बेसिकली जो हमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है, दैट इज बिटवीन दी स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स, कि दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें नजर आ रहा है. तो आपके जहन में क्या आ रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं, उन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की क्या वजह? ऑफ कोर्स जब आप बात करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स की, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री जो है वो स्टील जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. नाउ वो जो स्टील जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं और वो स्टील को वो वहाँ पे फैक्ट्री उन्होंने लगाई हुई है और वहाँ पे डेफिनेटली उसका एक ये होता है कि जो वेस्टेज है, जो केमिकल्स हैं और जो वहाँ पे एक स्मोक है वो क्रिएट होगी. तो जो इर्द गिर्द की कम्युनिटी है, जो रेजिडेंशियल एरिया फॉर इंस्टेंस है, तो वहाँ पे वो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है
उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए वहाँ पे मुख्तलिफ डिजीज़ जो हैं उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर उनको देखना पड़ेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट है। तो जब हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की, तो किसी भी इदारे को कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये देखना चाहिए कि इस डिसीजन का इम्पैक्ट किन किन लोगों पे होगा, और डेफिनेटली उन तमाम लोगों को, उन तमाम स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को वॉच करना, दैट इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। स्टेक होल्डर्स की जब हम बात करते हैं, ऑन द अदर साइड जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन लोगों ने आपके शेयर्स परचेज किए हुए हैं, definitely they are, of course they are the decision maker, they are part of the team। तो जब आप बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स कम्युनिटी की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, पोल्यूशन को मिनिमाइज करने की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स दैट नीड्स मनी। सो जब आप पैसा खर्च करेंगे स्टेक होल्डर्स की बेहतरी के लिए, तो डेफिनेटली वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा शेयर होल्डर्स की पॉकेट में से, वो पैसा आएगा प्रॉफिट में से। तो इट मीन्स के प्रॉफिट को कट लगेगा। जब प्रॉफिट को कट लगेगा तो डेफिनेटली दिस थिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल टू of course shareholders, और फिर definitely there is a conflict of interest between the stakeholders and shareholders। जब हमने board of governors की बात की, तो board of governors की जब हम बात करते हैं तो there are different directors who are responsible to represent the stakeholders and the shareholders। और जब हम बात करते हैं stakeholders की, तो stakeholder की जो protection के लिए जो board of governors में जो person appoint किया जाता है in normal circumstances, that is called the non-executive director। I will repeat, non-executive director is responsible to protect the rights of all stakeholders। ना इसको नॉन एग्जेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो है इन मोस्ट केसेस वो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट वहाँ से नहीं ले रहा होता उस ऑर्गेनाइजेशन से, और दैट इज़ वाई जब हम कहते हैं कि वो फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ले रहा, तो डेफिनेटली उसका जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं है, तो उसका एक जारी बात है कि एक इम्पैक्ट है कि उसके डिसीजंस जो हैं वो ज़्यादा न्यूट्रल और ज़्यादा जो है वो स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट की तरफ होते हैं। ऑन दी अदर साइड और भी डायरेक्टर्स हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जो कि स्टेक शेयर होल्डर्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो हेड हैं, एंड देन वो एक एज अ टीम दे डिस्कस एंड देन दे डिसाइड। नाउ इन दिस वे दे डू नॉट रिसीव डायरेक्टिव्स फ्रॉम दी मिनिस्ट्री। सो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को वॉच किया जाए, कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जो खिलाफे कानून और जो रूल्स ऑफ बिजनेस के अगेंस्ट हो, वायलेशन हो, कोई भी ऐसा काम ना किया जाए। सो इससे फिर जो हमने एक नतीजा ये निकाला कि मिनिस्ट्री की जो डायरेक्टिव्स हैं या मिनिस्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो फिर यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं नजर आता। ओके, जब हम by now structure for government should be fairly clear, and then जब हम बात करते हैं structure of government की, तो that should be fairly clear। So federal executive branch comprises of ministers who head all ministries। So federal secretaries की जब हम बात करते हैं of the ministries, they assist the ministers in formulation of policies, execute the policy, write proposal for legislation to be submitted to the cabinet, and keep the minister informed। So now you see that कि जो federal secretaries हैं of the ministries, they assist the ministers in these areas। Now formulation of policy is very important। So policy formulation of course is really very important। So जो federal secretaries हैं, they need to do a lot of work, smart work I will say that। So this is really very important कि जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर हेल्प आउट करेंगे मिनिस्टर्स को डेफिनेटली, और एक ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल हो, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए बेनिफिशियल हो, जिसके तमाम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हों, और जिसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ओवरऑल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। एंड देन execute the policy। Of course implementation of the policy is really very important, and that is again जो federal secretary हैं वो they assist the ministers in doing that, and then writing proposal for legislation to be submitted to the cabinet। और cabinet के लिए जो एक suggestion है, proposal है for legislation
तो वो डेफिनेटली फेडरल सेक्रेटरीज जो हैं दे आल्सो हेल्प इन दैट एरिया एज वेल एंड कीप द मिनिस्टर इन्फॉर्म. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर आप मिनिस्टर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो मिनिस्टर आपका अपडेटेड नहीं होगा. तो मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना, अपडेट करना, उसको पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प आउट करना, एग्जीक्यूट करना पॉलिसी को, और राइटिंग प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन टू बी सबमिटेड टू द कैबिनेट. सो दीज आर ऑल द मेजर फंक्शंस ऑफ द फेडरल सेक्रेटरीज who are assisting the ministries and who are assisting the ministers. Okay, the minister is responsible for the working of the division, and in the question answer session of the National Assembly, the minister answers the questions raised on the working of the ministry in the assembly. So now you see that कि जब हम बात करते हैं नेशनल असेंबली की, प्रोविंशियल असेंबली की, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर सेशन है कि लाइक फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ मेंबर्स जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स को रेज करते हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के किसी एक इलाके में या दूसरे इलाके में या किसी तीसरे इलाके में जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तानी अवाम के, उसको हाईलाइट किया जाता है. तो मिनिस्टर जो रेलेवेंट मिनिस्टर है उस मिनिस्ट्री का, जिसके रेफरेंस से, जिसकी रेलेवेंस से क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उस मिनिस्टर के लिए जरूरी है कि वो उसका आंसर करे. Okay, now we move on towards public and private administration. It is said that the work in public organization is guided by commitments to public service ideals, and then this is the basic difference between public and private sector of Pakistan. Now जब हम बात करते हैं public और private sector के difference की, तो of course जो public sector of Pakistan है वो पाकिस्तानी अवाम के इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है, पाकिस्तानी अवाम के लिए सर्विसेज दे रहा है. और जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो सिलेक्टेड लोगों के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल आगे हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इसी सिलसिले में. However, public sector organizations are involved with management, and for that reason public administration is often confused with business management. Now, early writers in the field often suggested that government should become more like business. तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ अर्ली राइटर्स ने बात की कि जो गवर्नमेंट्स जो हैं दे शुड मोर बिकम लाइक बिजनेस, कि गवर्नमेंट को बिजनेस की तरह रन करना चाहिए. दिस इज लाइक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ some of the writers. The reason to express this device was that private sector organizations were considered more efficient and effective. Of course, जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, we are talking about the entire world. We are talking about the Pakistani private sector as well. So now you see that जब हम बात करते हैं efficiency and effectiveness की, okay, let us discuss efficiency and effectiveness of the private sector of Pakistan. जब हम efficiency की बात करते हैं कि we try to get the maximum output with minimum input. So minimum input के साथ maximum output की जब आप बात करते हैं, this is called efficiency. और effectiveness ये है कि जो आपके desired goals हैं, जो desired आपके objectives हैं, जो desired results आप चाह रहे हैं, so अगर आप वो achieve कर लेते हैं, आपकी organization वो achieve कर लेती है, it means your organization is effective. और अगर आप नहीं कर सकते तो it means your organization is ineffective. So पूरी दुनिया में जब हम प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं तो इन कंपैरिजन अगर हम देखते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस को, तो प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की तरफ ज़्यादा है, उसका जो अचीवमेंट्स हैं, जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. The reason to efficiency was often attributed to the profits earned. So efficiency की जो एक जो root cause जो हमें basic factor नजर आ रहा है, that is the earning of profits. So the more you earn profit, the more efficient you are, and then so that is one of the reasons of higher efficiency in the private sector of Pakistan. And then observers therefore make the primary distinction between business and government, that is of प्रॉफिट. तो जब आप बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की, तो दोनों के दरमियान जो हमें एक वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है, दैट इज ऑफ प्रॉफिट. कि जो प्राइवेट सेक्टर है देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, वेयर जो पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है देयर मेजर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड देयर बेस्ट सर्विसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. Now, while government is concerned with
providing services or regulating individual or groups behavior in the public interest. So the canvas and scope of government is much broader, since it provides service to the citizens and not to specific customer. So now this is again a big difference between the public sector of Pakistan and private sector of Pakistan. कि गवर्नमेंट जो है वो ब्रॉडर सेंस में अपने विजन को लेके जा रही है, और वो तमाम पाकिस्तानी सिटीजन्स को, जो पाकिस्तान में तमाम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। वेयर एज जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक स्पेसिफिक कस्टमर्स को, एक खास टारगेट ग्रुप को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो उन कस्टमर्स को प्राइवेट सेक्टर एड्रेस कर रहा है, हु कैन अफोर्ड देयर प्रोडक्ट्स, हु कैन अफोर्ड देयर सर्विसेज, वेयर एज पब्लिक सेक्टर के अंदर इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और पब्लिक सेक्टर जो है वो तमाम लोगों को इक्वल तरह से अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। For example, company that manufactures cars will be dealing with those who can afford cars. So जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो किसके लिए कार्स बना रही है? वो उन लोगों के लिए कार्स बना रही है who can afford it, who have the purchasing power. अगर परचेजिंग पावर नहीं है तो वो आपके लिए कार नहीं बना रहे। तो जिसके पास परचेजिंग पावर है उनके लिए वो कार्स बना रही है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो मीनिंग दैट कि जो सिलेक्टेड कस्टमर्स हैं, जो सिलेक्टेड फ्यू हैं, जो टारगेट मार्केट है, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो काम कर रहा है। लेकिन एक सबके लिए अगर हम कहें कि जो लोग कार्स अफोर्ड नहीं कर सकते या जो परचेजिंग पावर जिनके पास नहीं है, उनको प्राइवेट सेक्टर जो है, अगर हम कार मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं तो वो उनको एड्रेस नहीं कर रहा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। नाउ while government provides roads which is used by those who have animal driven carts, bicycles, motorbike etc. तो जब हम रोड्स कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो रोड्स किस लिए कंस्ट्रक्ट की जाती हैं? तो वो आम पैदल जो लोग चल रहे हैं, जो बाइक्स के ऊपर हैं, या जिनके पास एनिमल ड्रिवन कार्ट्स हैं वगैरह वगैरह, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो ये सिर्फ सिलेक्टेड फ्यू के लिए नहीं है, ये तमाम जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उनके लिए रोड्स बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। सो इसी तरह की गार्डन्स बनाए जा रहे हैं, पार्क्स बनाए जा रहे हैं। सो इस तरह से अगर आप देखें कि गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल तमाम जो पाकिस्तान में सिटीजन्स हैं उनको फोकस करके जो है अपना काम कर रही है, और उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं रखा हुआ कि किसकी परचेजिंग पावर है और किसकी परचेजिंग पावर नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो फोकस्ड है और वो सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा है इन पाकिस्तान। Now we continue our discussion on the differences between the public and private sectors of Pakistan. So basic differences between the public and private sector are 7, which are अगर आप देखें स्लाइड के ऊपर के जो डिफरेंस हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के, the first thing is constitution, then the public interest, then ambiguity, then we talk about the pluralistic decision making, visibility, market, and of course the less efficient. So we will discuss these differences of public and private sector of Pakistan one by one. Then the first one is the constitution. Now talking about the public and private sector administration and talking about particularly about their differences, the first difference between the public and private sector of Pakistan is of the constitution. Now in Pakistan, the federal constitution defines the environment of public administration, and from it originates laws that affect. So the executive branch of the government tells that laws are to be legislated by the legislature, and the public administration has to implement the laws and the policies. So यहाँ पे अगर हम देखें कि लॉज की इम्प्लीमेंटेशन की और पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, एंड इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, although there is legal binding which has different nature and content. तो जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो कोई खास हमें कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे नजर नहीं आता, और कोई ऑफ कोर्स दे हैव बाउंड्रीज और उनकी जो लीगल बाइंडिंग्स हैं और वो वेरी करती हैं, बट द थिंग इज
कि ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए हमें नजर नहीं आ रहा. सो ऑफन द फेडरल गवर्नमेंट विल क्रिएट ए प्रोग्राम एंड रिलाई ऑन द प्रोविंसेस टू इम्प्लीमेंट इट. सो सच अ सिचुएशन इज नॉट फाउंड इन प्राइवेट बिजनेस. सो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोग्राम को डिजाइन करती है और उसके लिए वो रिलाई करती है प्रोविंसेस के ऊपर, जो कि हम कहते हैं पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है एंड बलोचिस्तान है. तो चारों प्रोविंसेस और कश्मीर जो है वो मिलके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. बट सच अ सिचुएशन इज नॉट फाउंड इन द प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. The next difference is of the public interest. Now public interest is the good of a larger number of people, like that is any good or service is provided which is used by large number of citizens. तो जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, तो जो एक हाई इन डिमांड है प्रोडक्ट या सर्विस, उसके लिए जो है पब्लिक सेक्टर जो है वो फोकस करता है अपनी एफर्ट्स को. सो प्राइवेट इंटरेस्ट इज लिमिटेड एज कंपेयर टू पब्लिक इंटरेस्ट. सो जब हम देखते हैं कि इन कंपैरिजन जब हम देखते हैं कि जो लिमिटेड और अनलिमिटेड की जब हम बात करते हैं, तो जो पब्लिक इंटरेस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, वेयर एज द प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट इज लिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन फॉर ऑल वर्सेज एजुकेशन फॉर सिलेक्टेड फ्यू. अगेन जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो सरकारी स्कूल्स हैं, तो आप देखें कि जो बड़े इंग्लिश स्कूल्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर जिनको स्पॉन्सर कर रहा है, रन कर रहा है, तो वो सिलेक्टेड फ्यू के लिए हैं. नाउ सिलेक्टेड फ्यू मींस कि पीपल हु कैन अफोर्ड द फी ऑफ देयर किड्स. सो दिस रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि जब आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो वो सिलेक्टेड फ्यू के लिए एजुकेशन की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं. लेकिन जब आप बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, तो दे टॉक अबाउट एजुकेशन फॉर ऑल. Private sector will provide education to those who have the ability to pay, while government will provide education to all with low tuition fee. Again, a huge big difference here, that government of Pakistan will provide education to all even with like a low tuition fee. तो प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि हमने शुरू में बात की कि अर्निंग प्रॉफिट इज देयर बेसिक मोटिव, कि एक अपना मोटिव लेके आए हैं कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना है, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑफ कोर्स हाई फीसेस हैं. अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर जो है वो चार्ज कर रहा है. लेकिन जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो लो ट्यूशन फी के साथ वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं विद द best possible facilities. Now similarly the benefit of maintaining law and order is for all and not to the selected few. Again this is a big difference between the public and private sector of Pakistan, कि जो public sector of Pakistan है वो law and order जो है वो पूरे पाकिस्तान में जितने लोग रह रहे हैं उनको law and order situation जो है वो बेहतर करने की जो जिम्मेदारी है that is on the shoulder of public sector of Pakistan, whereas चंद सिलेक्टेड लोगों की जो प्रोटेक्शन है या सेफ्टी है उसके लिए जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं, तो दिस डिफरेंशिएट्स कि प्राइवेट सेक्टर जो है मे बी वो चंद खास लोगों की सिक्योरिटी और उसकी इंश्योर करेगा, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है वो पूरे पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा. Now continuing our discussion on the differences of public and private sectors of Pakistan, the next difference is ambiguity. So in the private sector, profit is the basic measure of evaluating performance of organization in business. तो जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स मनी मेकिंग जो है वो हमें ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, और जो परफॉर्मेंस जो है प्राइवेट सेक्टर की उसको एवेलुएट किया जाता है कि आपने कितने टारगेट्स को अचीव किया है, आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, थिंग्स लाइक दैट. The same is not true in the public agencies, where making or losing money is not the main criterion for success or failure. तो जब आप पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप ये नहीं देखते कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस में गए हैं. सो द बेसिक थिंग इज सक्सेस और फेलियर की बात जो है वो पब्लिक एजेंसीज के अंदर नहीं हो रही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रॉफिट की, परफॉर्मेंस की. सो मीन जब आप परफॉर्मेंस को रिलेट कर रहे हैं प्रॉफिट के साथ इन दी प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है वहां पे आप प्रॉफिट जो है उसको रिलेट आप परफॉर्मेंस के साथ नहीं कर रहे हैं. The objectives of public organizations are stated in terms of service provision. For example, an agency's mission may be to protect the quality of the environment or
to provide an adequate level of rehabilitative services to the disabled. Now continuing on the same difference, that is ambiguity. In both the situations, the government may spend more and the purpose of spending may not be making profit but to provide service. तो जब आप बात करते हैं स्पेशल पर्सन्स के लिए काम करने की, डिसेबल्ड के लिए काम करने की, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, दैट इज ओवरऑल जो स्पेंडिंग है वो इस पर्पज से नहीं है कि उस स्पेंडिंग को करने के बाद वहां से कोई प्रॉफिट अर्न किया जाएगा, बल्कि उसको सोशल वेलफेयर के लिए, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनकी बेहतरी के लिए स्पेंड किया जाता है. एंड देन इन दिस वे वी सी दैट द गोल्स ऑफ पब्लिक एजेंसीज आर नॉट एज क्लियर एज प्राइवेट सेक्टर. सो अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स जो हम देखते हैं कि जो पब्लिक एजेंसीज के जो गोल्स हैं वो उतने क्लियर नहीं हैं जितने के प्राइवेट सेक्टर के हम देखते हैं कि उनके जितने गोल्स जो हैं वो क्लियर हैं, एंड दीज गोल्स आर लेस क्वांटिफाइबल. तो डेफिनेटली जब आप बात करते हैं पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान की, तो जो गोल्स हैं वो इतने ज्यादा क्वांटिफाइबल नहीं हैं, उनको मेजर करना इज नॉट इजी. The next difference when we talk about the public and private sector of Pakistan is the pluralistic decision making. So when we talk about the pluralistic decision making means when more than one type of group is the beneficiary or effectees. So whether we are talking about the benefits or whether we are talking about the negative consequences, so that is the result of a decision making. And then हम देखते हैं कि pluralism means that people belong to different ethnic, racial, regional, cultural backgrounds. Now people as a whole जब हम बात कर रहे हैं कि they have different cultures and different backgrounds, and then since people are different ethnically and culturally, their demand and needs vary. There would also be divergent views on issues of public interest. तो जब हम लोगों की बात करते हैं, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, पब्लिक की ओवरऑल बात करते हैं, तो they have a different culture, they have a different background, they have a different ethnic or racial or regional background. So it means that कि जब आप इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से और डिफरेंट कल्चर से जब लोग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो डिमांड्स हैं वो वेरी करती हैं, वो डिफर करती हैं. ऑफ कोर्स कल्चर टू कल्चर की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पीपल ऑफ अ रीजन वुड नीड रोड्स while people of other region might need dams. तो now you see the मेजर डिफरेंस कि एक इलाके में लोग जो हैं वो रोड्स की बात कर रहे हैं कि हमें रोड्स आप कंस्ट्रक्ट करके दें, और दूसरे इलाके में आप देख रहे हैं कि वहां पे लोग डैम्स की बात करेंगे, यहाँ डैम्स बनाएं. सो इट मींस दैट कि आप एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं रख सकते कि एक ही जो फैसिलिटी है या एक ही दो जो आप उनको सपोर्ट है वो तमाम इलाकों के लिए आप एक ही सपोर्ट दें या एक ही फैसिलिटी दें, बल्कि आपको नीड बेस्ड काम करना पड़ेगा कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द नीड्स, और जो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक आप नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उन नीड्स को सामने रख के देन यू ट्राई टू प्रोवाइड द your best services. Now continuing our discussion on the pluralistic decision making. So since the money available is the same, there is need to build consensus. So this is really very important कि हमें एक consensus develop करने की जरूरत है कि सेम एक अमाउंट है डेफिनेटली, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आर देयर, तो एक सेम अमाउंट है और डेफिनेटली वहां पे कंसेंसस की जरूरत है कि आप तमाम लोगों को, तमाम पब्लिक को साथ मिला के चलें. तो म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग की जरूरत है कि एक एग्रीमेंट हो यहाँ पे, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो मिल के एक म्यूचुअल डिसीजन को साथ लेके चलें और वो काम करें जो कि वाकई जिसकी एक नीड है और जिसकी एक जरूरत है. And then in private sector, a company would decide to manufacture a two-wheeled vehicle, keeping in view the income of buyer. It does not seek any consensus on that. So private sector is straight. We say that, okay, two-wheel vehicle is required और purchasing power है पाकिस्तान में, तो private sector will do that और उसके लिए वो consensus develop करने की कोशिश नहीं करेंगे. So we can say that the pluralistic decision making of public sector is different from the private sector decision making. The next major difference between the public and private sector of Pakistan is of visibility.
नाउ जब हम विजिबिलिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज मैनेजर्स ऑपरेट विद मच ग्रेटर विजिबिलिटी देन देयर काउंटर पार्ट्स इन इंडस्ट्री वेयर इंडस्ट्री बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग वॉच्ड बाय द मीडिया। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर में, तो पब्लिक सेक्टर में ऑफ कोर्स जो मीडिया है, जो न्यूज़पेपर है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ज़्यादा उनका फोकस है। सो जब हम बात करते हैं किसी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के डिफरेंस की, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो विजिबिलिटी है मैनेजर्स की वो बहुत हाई है, और वो क्योंकि जो उनकी एक एक चीज़ के ऊपर, उनकी एक एक एक्टिविटी के ऊपर मीडिया जो है वो फोकस करके बैठा हुआ है। एंड देन continuing our discussion on visibility, so thus public managers actions become more visible as compared to the actions of private managers। तो private managers के actions मीडिया के ऊपर इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते एज कंपेयर टू दी पब्लिक मैनेजर्स एक्शंस, क्योंकि पब्लिक जो सेक्टर है दैट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने टैक्सेस दिए हुए हैं जिसके नतीजे में वो डेफिनेटली वो पब्लिक सेक्टर जो है वो इस वक्त फंक्शन कर रहा है। तो पब्लिक सेक्टर जो है ज्यादा अकाउंटेबल है और अपने तमाम एक्शंस का एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। एंड देन दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट पब्लिक मैनेजर्स एक्शंस अफेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगेन जो यहाँ पे एक लॉजिक हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं कि जो पब्लिक मैनेजर है उसके जो एक्शंस हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट ने बनाया है, तो वो जो फेडरल हॉस्पिटल होगा या प्रोविंशियल हॉस्पिटल होगा जो कि जिसको एक गवर्नमेंट ने उसको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है और जहाँ पे कोई चार्ज नहीं किया जा रहा या मिनिमम सिर्फ बहुत ही माइनर सी अमाउंट चार्ज की जा रही है, तो जो पब्लिक सेक्टर जो है वो एक लार्ज नंबर को एड्रेस कर रहा है। तो कोई भी डिसीजन जब वो मैनेजर जो कि उस हॉस्पिटल में काम कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट, जब वो कोई भी डिसीजन लेगा तो उसका इम्पैक्ट उन तमाम लोगों के ऊपर होगा जो तमाम उस पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल को यूज कर रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो इन कंपैरिजन जो पब्लिक सेक्टर का जो मैनेजर है उसके एक्शंस जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है वो एक बिग नंबर को जो है वो डील कर रहा है, वो पूरे पाकिस्तान को देख रहा है। वेयर एज जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूरे पाकिस्तान की बजाय सिलेक्टेड जो हैं, जो लोग उसकी प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसके ऊपर फोकस कर रहा है। Now talking about the differences of public and private sectors in Pakistan, the next is the market. So another important difference between the public and private sector is the arena of markets. Although government policies and actions affect markets, but government does not face same challenge of market as the private sector. So now you see that कि जब हम बात करते हैं public and private sector की, तो जब हम पब्लिक एजेंसीज की बात करते हैं तो दे डू नॉट फेस कंपटीशन। सो मोस्टली जो हम पब्लिक सेक्टर में देखते हैं कि दे हैव द मोनोपोलीज, वेयर एज प्राइस जो है ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू budgetary routines rather than fixed at the market. The prices of goods and services in the private sector are determined through the principle of demand and supply. Now moving towards the next difference, that is of less efficient when we talk about the difference between the public and private sector of Pakistan. So there is often the allegation that the public organizations are less efficient. ये अक्सर कॉमन एक फिनोमिना है कि जब भी पाकिस्तान में बात की जाती है कि पब्लिक सेक्टर जो है इट इज़ लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। इट मीन्स दैट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट मैक्सिमाइज आउटपुट विद गिवन रिसोर्सेज। तो डेफिनेटली इसमें ये भी एक आर्गूमेंट दिया जाता है कि एक एफिशिएंसी यहाँ पे हमें नज़र नहीं आती पब्लिक सेक्टर की, कि मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट जो है हमें नज़र नहीं आ रहा। दिस एलिगेशन इज नॉट न्यू एंड बिकॉज ऑफ दिस एलिगेशन देयर हैव बीन एफर्ट्स टू मेक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एज एफिशिएंट एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो एलिगेशन है कोई ये नया नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना एलिगेशन है। सिंस जब से पाकिस्तान बना है ये एक चैलेंज जो है फेस जो पब्लिक सेक्टर है वो फेस करता हुआ आ रहा है। तो इसमें डेफिनेटली अब इस वक्त एफर्ट्स शुरू हो चुकी हैं और एक पॉजिटिव चेंज की तरफ मूव किया जा रहा है, जैसे हमने शुरू में बात की थी इस लेक्चर में भी और प्रीवियस लेक्चर्स में भी, कि देयर आर ऑफ कोर्स मेजर्स टेकन, करेक्टिव मेजर्स टेकन, ताकि पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है उसको प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस के बराबर लाया जाए। और ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग रन वी होप दैट इंशाल्लाह कि परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आगे बढ़ जाएगी।
Now, then we talk about the power. There are different kinds of power that organization possess, but the power of government is different. The distinctive power of government is as follows. Like for example, power to regulate. जब हम government की different powers की बात करते हैं, तो जो basic जो major government की powers हैं, so the first is the power to regulate. Government can regulate private sector by formulating laws. So these laws are binding on private sector and they have to abide by it. So government के पास एक power है कि वो एक आपको किस तरह रेगुलेट करे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. तो गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है वो प्राइवेट सेक्टर पाबंद है उस पर अमल करने का. एंड द नेक्स्ट इज द पावर टू कोर्ट्स. Only government has the power to use force and to put people behind bars for violating law. Thus, power of punishment can only be used by government, and no private organization has this power. Again, a big difference between the private and public sector of Pakistan. कि अगर कोई person crime करता है, कोई criminal है, कोई corruption में involve है, and things like that, कोई negative activities में involve है, तो उसको behind the bar लेके जाना, उसको prison में लेके जाना, that is the major responsibility of the of course public sector. और पब्लिक सेक्टर ही डिसीजन ले सकता है इसमें. प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इसकी इजाज़त नहीं है इन पाकिस्तान कि वो इस किस्म के मेजर्स ले. सो इट इज़ द ओनली, सो इसको हम कह सकते हैं कि एक पब्लिक सेक्टर की एक ऑफ कोर्स एक डिस्क्रिशन है, उसकी अपनी एक पब्लिक सेक्टर की एक अथॉरिटी है, एक पावर है कि वो जो पनिशमेंट अगर किसी को करनी है, सो private sector is not allowed to do that, whereas public sector जो है they can do it as per existing rules and regulations. Then we talk about the power of like for example, the government laws and regulations have general applicability. The most common example of this is the application of traffic laws all over the country and its acceptability by all. तो जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ट्रैफिक लॉज हैं, लोग ट्रैफिक लॉज को, सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, उसकी वायलेशन नहीं करते, या जो वायलेशन करते हैं डेफिनेटली उनको कैच करता है पब्लिक जो सेक्टर है, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है उनको कैच करती हैं. तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जैसे हमने एग्जांपल दी कि एक ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसकी वायलेशन नहीं की जाती और तमाम लोग उसको फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिगार्डिंग ट्रैफिक लॉज. सो दैट इज अगेन वन ऑफ द पावर्स जो कि डिफरेंशिएट करती है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को. ओके जी, हियर आई बिलीव दैट कि आज के लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के डिफरेंसेस क्या हैं. हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के डिफरेंट मेजर फंक्शंस हैं उसको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया. आई होप दैट कि आज के लेक्चर से आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा और डेफिनेटली आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए ये तमाम लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स आपके लिए दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप दैट यू ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दीज लेक्चर्स रियली well. Thank you very much for your kind attention. Khuda Hafiz.